Hello, my dear students. Welcome to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. Today, we are going to talk about some more things about the sound wave and also the sound wave, alright? And also about its reflection. कैसे ये reflect होती है and because of that reflection, कितने ज़्यादा applications हम लोग अपनी life में देखते हैं along with like echo, reverberations. So, we will be talking about that, ठीक है? तो पहले हम जो हमारे साउंड वेव की बची कुछ चीज़ें थी उनको देख लेते हैं. Alright, and we will be talking about the effect of the velocity, effect of the temperature on the velocity of the sound. तो अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है, कम हो जाता है, तो उसके बेसिस पे साउंड की वेलोसिटी क्या चेंज होती है एयर में से या फिर नहीं, ये हम देखने वाले हैं. ठीक है, कुछ और फैक्टर्स भी हैं जिनके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे. विल बी लुकिंग अप टू सम कैरेक्टरिस्टिक्स. Alright, so these are all various things we'll be going to discuss before discussing the reflection of sound. Alright, so let's get started. You all know that this information can help you in cracking the school examination as well as the Olympiads. So you need to make sure that you watch these video lectures till the end, and also you need to share these video lectures to every one of your friends so that वो अपनी जो goals उन्होंने खुद के लिए set किए हैं उन्हें crack कर सकें. Alright, that's it. That is what you need to do. Now, if you want to join us through the Telegram channel to get the DPPs and study material over there, you have to write TTB009 over there in the search box of the Telegram app. If you do so, you are going to get the drop down list of the channels of the TTB, and there would be the 9 class channel. You can join that and access all the things over there along with the notifications of the video classes. Okay, now see, this is the team which is going to help you a lot, as we are putting so much of our efforts into these video lectures, into the content of these video lectures and the content you need to crack the examination. And that is the main thing, you should watch these. And the second factor of these video lectures is that they are free for everybody. So what you need to do is you need to watch these video lectures, study from these video lectures, just get your goals, and you need to share these video lectures to your friends also, ताकि आपके friends भी अपने goals को crack कर सकें. Alright, that would be so cool, right? Sharing is caring, we know that. अब देखिए यहाँ पर क्योंकि ये जो वीडियो लेक्चर्स हमने आपके लिए फ्री प्रोवाइड किए हैं, ये सबके लिए फ्री है, ठीक है. बट इवन इफ यू वांट टू कनेक्ट विद अस, ज्वाइन विद अस एंड वांट अ कंसिस्टेंट स्टडी ओवर देयर, then you can join our packages also. And to access those packages, you need to go on our website, that is the www.talkingtextbooks.in. So when you go on our website, you are going to get the 2 type of packages over there, the full package and the test series. All right, so full package contains all the minimum necessary things over there. जैसे कि स्टडी मटेरियल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है. क्यों? क्योंकि अगर हमें एक सही फोकस्ड और कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल नहीं मिलता है तो हम लोग बहुत ज़्यादा वेंडर करते हैं कि भाई ये वाला जो है इसको चूज़ करें या फिर किसी और को चूज़ करें, विच वुड बी गुड एंड ऑल. ये हमें जो है डिसाइड करने में काफ़ी टाइम लग जाता है. फिर हम लोग स्टडी स्टार्ट करते हैं जबकि बाकी बच्चे पहले से ही अपनी स्टडी स्टार्ट कर चुके होते हैं. सो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. देन कम्स दी स्टडी फैक्टर कि भाई आपको अगर स्टडी मटेरियल मिल भी जाए तो उसको समझाने के लिए तो कोई होना चाहिए. एंड दैट्स व्हाई दीज वीडियो लेक्चर्स आर फॉर यू बेसिकली, राइट. एंड देन कम्स दी होमवर्क सबमिशन फीचर. तो देखो, होमवर्क सबमिशन फीचर में आपको होमवर्क करना पड़ेगा. तो ऐसा नहीं है कि आप अगर इसको ज्वाइन नहीं करेंगे तो भी होमवर्क नहीं करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है. आपको वैसे भी अपने स्टडी के लिए, अपने गोल्स के लिए होमवर्क तो करना ही पड़ेगा. होमवर्क इज द प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन, ठीक है, और कुछ भी नहीं है. यू आर गोइंग टू सॉल्व ऑल दी क्वेश्चंस ओवर देयर, सभी को आप सॉल्व करेंगे एंड दैट वुड बी द होमवर्क, ठीक है. यही होता है होमवर्क. आप एक्स्ट्रा काम करते हो, यू थिंक अबाउट दैट कंटेंट ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है. नाउ देन कम द पार्ट दैट इज द टेस्टिंग पार्ट, एंड दैट इज एन इम्पॉर्टेंट वन ऑल्सो. क्यों? क्योंकि सिर्फ पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, खुद को टेस्ट करना कि क्या ये चीज़ तुम्हें आ गए है, क्या ये टॉपिक के क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो, या फिर ये टॉपिक तुम्हारे लिए हार्ड है या इजी है. ये कैसे पता करेंगे? टेस्टिंग के थ्रू, ठीक है. एंड टेस्टिंग भी हम लोग 2 तरीके से करवा रहे हैं. दैट विल बी द बाई वीकली क्विजेज एंड द पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स. Bi-weekly quizzes का मतलब you are going to be tested twice a week. That means you are going to attempt the quiz twice a week, and then you'll be attempting the papers known as the periodic test papers basically. And वो जो है वो टाइम इंटरवल पे होता है, ठीक है. पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स आपको बताएंगे कि जो अपने फाइनल एग्जामिनेशन जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कि भाई हमें उसे क्रैक करना है,
कितना लेवल आता है, कैसा लेवल आता है, क्या आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, क्या आपकी स्पीड होनी चाहिए, इन सब चीज़ों में मैटर करता है, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई यू आर गोइंग टू डू दैट। सो अगर आप थ्रू आउट द ईयर कंसिस्टेंट स्टडी करना चाहते हैं, कंसिस्टेंटली आप अपने एफर्ट्स को लगाना चाहते हैं, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट वन नाइट बिफोर योर एग्जामिनेशन, देन you should join these full package. All right, and if you want to know just like the testing part, that you just want to test yourself, then you can also join our test series. ठीक है, तो you'll be getting the periodic test papers, recorded live classes and bi-weekly quizzes over there. So if you want to buy them, you can use my code CY Live to get a 30% discount. And if you want to know more about these packages, then you can call us on the number 919549041111. All right, and that would be good. All your queries will be resolved over there if you call us, right? So that would be your call. Now promise yourself that you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes and you will be revising on a daily basis. ठीक है, जो भी डेली रिविजन करेगा उसके बहुत अच्छे मार्क्स आने के चांसेस हैं, ठीक है, और वी कैन से कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करें हमारे साउंड वेव। सो बेसिकली व्हाट वी विल बी स्टडिंग टुडे इज साउंड वेव के बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, हम वेव टर्मिनोलॉजी ऑलरेडी देख चुके हैं, नाउ इट्स टाइम फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स। सोनिक बूम, व्हाट इज दैट, कैसे वो होता है या फिर उस दौरान क्या होता है, विल गोइंग टू सी। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, व्हाट इज दैट, इको, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग एंड कंडीशंस ऑफ इको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि मीडियम के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मीडियम, कितने स्पीड से ट्रैवल करेगी साउंड, विल इट चेंज, विल इट नॉट चेंज, व्हाट वुड बी द डिफरेंस अगर वही साउंड अगर एयर में से जाए, अगर वो वाटर में से जाए या फिर वो किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट में से जाएगी तो क्या होगा, क्या वो जल्दी पहुंचेगी, क्या उसका स्पीड इंक्रीज हो जाएगा, क्या नहीं, ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। हम लोगों ने अभी तक ये बात देखी है कि साउंड वेव कैसे प्रोपोगेट करती है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है, हम लोगों ने ये देखा था, राइट। हम लोगों ने ये देखा कि भाई जैसे ही साउंड वेव हिट करती है, जैसे एनर्जी हिट करती है, मीडियम के पार्टिकल्स, ठीक है, वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। कैसे वाइब्रेट करते हैं, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द साउंड वेव, ठीक है। अगर साउंड वेव यहाँ से आ रही है, लेट इट बी दिस इज द पार्टिकल, तो वो ऐसे आगे पीछे मूव करेगा, क्योंकि एक बार उसे साउंड वेव ऐसे धक्का देगी, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, सो दे विल बी डूइंग द लॉन्गिट्यूडिनल बिहेवियर, ठीक है, वो अलोंग द वेव जो है वाइब्रेट करने वाला है पार्टिकल। अब जब आगे जाएगा, पीछे जाएगा, फिर से आगे जाएगा, तो अपने बगल वाले पार्टिकल को ही अपनी एनर्जी दे देगा, ठीक है। अब बगल वाले पार्टिकल को एनर्जी मिल गई, वो वाइब्रेट करेगा एंड देन इट विल ट्रांसफर द एनर्जी टू द थर्ड वन। अब वो वाइब्रेट कर रहा है एंड देन इट इज गोइंग टू डू सो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पार्टिकल जितने दूर दूर होंगे उतनी देर लगेगी, सही बात है। अब जैसे मान लो एक पार्टिकल यहाँ है, ये वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे आगे पीछे इसको एनर्जी मिल गई, अब ये वाइब्रेट कर रहा है, पर दूसरा पार्टिकल तो इतनी दूर है, अब इसके पास तक एनर्जी कैसे पहुंचेगी, ये तो बहुत ज्यादा लफड़ा हो जाएगा, राइट। तो पार्टिकल जितने ज्यादा दूर रहेंगे मीडियम के, उतनी ही देर में पहुंचेगी साउंड वेव, एंड दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ एयर। यही तो हम कह सकते हैं, एयर के अंदर, एयर एक ऐसा मीडियम या फिर यू कैन से गैस एक ऐसा मीडियम है जिसमें पार्टिकल्स बहुत दूर दूर रहते हैं। तो अगर एनर्जी स्ट्राइक पे होती है किसी मीडियम के पार्टिकल पर, किसी गैस के पार्टिकल पे बेसिकली, तो उन तक एनर्जी पहुंचने में इट विल टेक सो मच टाइम, ठीक है। एंड लिक्विड के पार्टिकल जो होते हैं वो इन कंपैरिजन टू द गैसियस पार्टिकल वो काफ़ी क्लोज रहते हैं, ठीक है। तो अगर साउंड वेव लिक्विड में से जाती है तो वो और भी बेटर स्पीड में जा सकती है, क्योंकि पार्टिकल्स पास पास रहेंगे, ठीक है, और थोड़ी सी भी एनर्जी भी जा पाएगी, ट्रैवल कर पाएगी, राइट। तीसरा आता है हमारा सॉलिड। अब क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स तो बहुत पास रहते हैं, ठीक है, एंड दैट इज द रीजन कि साउंड जो है सॉलिड में सबसे तेज ट्रैवल करती है, क्योंकि मीडियम बहुत पास रहते हैं, तो वो जल्दी क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं अपनी एनर्जी को, वाइब्रेट करे, जल्दी से ट्रांसफर करे, वाइब्रेट करे, जल्दी से ट्रांसफर करे, ऐसे करते 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 जल्दी से साउंड वेव चले जाती है, ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर। बट यहाँ पर हम ये देख रहे हैं पार्टिकल्स की बात, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने कभी ऐसा ऑब्जर्व किया है कि भाई जब हम अपने घर में होते हैं, किसी और को बात कर रहे होते हैं, हम आराम से बैठे हुए हैं, ठीक है, हम कोई भी शब्द बोलेंगे तुरंत उसको सुन जाता है। एयर में सबसे धीरे होने के बावजूद, स्पीड सबसे धीरे होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं, उसके बावजूद भी तुरंत आवाज़ पहुंच जाती है।
तो आप ये खुद सोचो कि जब एयर में तुरंत आवाज पहुंच रही है तो लिक्विड और किसी भी सॉलिड के अंदर कितनी ज्यादा तेजी से साउंड वेव पहुंच सकती है। ठीक है, सो देखिए sound travels with different speed in different media like solid, liquid and gas. ठीक है, this is because sound travels in a medium due to the transfer of energy from one place to another particle of the medium. एक पार्टिकल को ट्रांसफर होते रहती है एनर्जी and that's how sound energy travels through the air or any medium. ठीक है, तो गैस के अंदर जो साउंड की वेलोसिटी होगी वो सबसे कम होगी, फिर आता है लिक्विड, यानी कि जो गैस के अंदर वेलोसिटी है उससे ज्यादा लिक्विड में है वेलोसिटी, और अब आता है सॉलिड। ठीक है, तो मतलब सॉलिड के अंदर जो वेलोसिटी होगा साउंड को दैट वुड बी ग्रेटेस्ट एज कंपेयर्ड टू द लिक्विड एंड एज कंपेयर्ड टू द गैस। ठीक है, तो सबसे कम साउंड की जो वेलोसिटी है वो किस में है, गैस में। फिर साउंड की जो वेलोसिटी है वो लिक्विड में हो जाती है थोड़ी सी ज्यादा, क्यों, क्योंकि पास हो जाते हैं बहुत सारे पार्टिकल्स। ठीक है, वहीं सॉलिड में काफी पास रहते हैं पार्टिकल्स एंड दैट्स व्हाई साउंड एनर्जी उसमें सबसे तेज स्पीड में ट्रैवल करती है। ठीक है, अब आप इसमें देख सकते हैं कि क्यों और ऐसा क्या रीजन है। देखो, द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर क्लोज टू ईच अदर, सो द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर टेक्स प्लेस इन लेसर टाइम। देखो कितने पास है पार्टिकल, बहुत ज्यादा पास है पार्टिकल। अब अगर इस पार्टिकल को एनर्जी मिलती है तो वो बहुत ही जल्दी से ट्रांसफर कर देगा एनर्जी को, राइट। तो आप ये जो एनर्जी कन्वर्जन का ये जो ट्रांसफर का जो टाइम है एक्चुअली वो लेस हो जाएगा। ठीक है, एक पार्टिकल जब दूसरे पार्टिकल को एनर्जी दे रहा होगा तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये काफी कम हो जाएगा एंड दैट इज द रीजन कि सॉलिड के अंदर बहुत तेजी से साउंड ट्रैवल करेगी। वही हम बात करते हैं लिक्विड की, को देखो इसमें थोड़ा अब गैप आ चुका है। ठीक है, तो मतलब वाइब्रेट थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा तब जाके वो दूसरे अपने पार्टिकल्स को एनर्जी ट्रांसफर कर पाएंगे पार्टिकल्स। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड्स इज लेसर देन इन सॉलिड सिंस द पार्टिकल्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड से थोड़े दूर रहते हैं। ठीक है, एंड दैट इज द रीजन कि इस लिक्विड के अंदर जब कभी भी साउंड ट्रैवल करेगी तो वो सॉलिड के अंदर जाने वाली स्पीड से कम स्पीड में ट्रैवल करेगी। ठीक है, अब आते हैं गैस की तरफ। गैस में तो पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा दूर रहते हैं। ठीक है, अब जब वो बहुत ज्यादा दूर रहते हैं तो एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए चाहिए काफी टाइम एंड दैट इज हाउ अब यहाँ पे बढ़ गया है टाइम, तो डिक्रीज हो गई है स्पीड। ठीक है, एंड दैट इज द रीजन कि इसके अंदर जो एयर के अंदर जो स्पीड है साउंड की वो काफी कम रहती है। ठीक है, लिक्विड के अंदर एयर के कंपैरिजन में ज्यादा स्पीड रहती है साउंड की और सॉलिड के अंदर सबसे तेज रहती है स्पीड साउंड की। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड का मतलब जैसे हर एक व्यक्ति की आवाज होती है डिफरेंट, आप उसका साउंड सुनो, है ना। लड़कियों की आवाज अलग होती है, लड़कों की आवाज अलग होती है, बड़े आदमियों की आवाज अलग होती है, बच्चों की आवाज अलग होती है। ठीक है, सो हर एक पर्सन की डिफरेंट आवाज होती है। ठीक है, अब ये डिफरेंट कैसे होती है, ऐसा क्या चीज है जो ये डिफरेंट होती है। ऑलराइट, यहाँ पे वो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग सीखेंगे। ठीक है, जैसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज द पिच। ठीक है, पिच का मतलब अगर हम बोलें, और ये जो पिच है ये एक तरीके से यू कैन गेट दैट पिच फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है पिच, अगर हम ये बोले तो पिच इज द सेंसेशन ब्रेन इंटरप्रिटेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एमिटेड साउंड। अगर कोई भी साउंड एमिट होती है उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी है, तो वो कितनी फ्रीक्वेंसी है ये सेंसेशन हमें कैसे मिल रहा है, पिच के फॉर्म में मिल रहा है। ठीक है, तो मतलब जो भी फ्रीक्वेंसी है तो हमारा ब्रेन उसे एज अ फ्रीक्वेंसी नहीं लेकर वो इंटरप्रेट करता है एज अ पिच। ऑलराइट, एंड जितने ज्यादा तेजी से वाइब्रेशंस होंगे उतनी ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, राइट। अगर एक, क्योंकि देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब हमें ये बात पता है कि भाई फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड, है ना। 1 सेकेंड के अंदर कितने वाइब्रेशंस हैं। अगर मान लो 1 सेकेंड के अंदर 10 वाइब्रेशंस हैं, है ना, और वो बढ़ जाते हैं 1 सेकेंड के अंदर 15 वाइब्रेशंस हो जाते हैं, तो दैट इज द फ्रीक्वेंसी इंक्रीज्ड। 10 वाइब्रेशंस 1 सेकेंड में हो रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद 15 वाइब्रेशंस 1 सेकेंड में हो रहे हैं, तो ये जो सेकेंड फ्रीक्वेंसी है ये बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी है, राइट। तो ये फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज हो जाती है
किसके बेसिस पे? नंबर ऑफ वाइब्रेशन के बेसिस पे। नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ 15 हो गए हैं 1 सेकेंड में, तो दैट इज द मोर फ्रीक्वेंसी। और अगर मोर फ्रीक्वेंसी होगी तो मोर पिच भी होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें कि एक हाई पिच और एक लो पिच हम कैसे पहचाने, कैसे पता करें ये चीज क्या होती है, तो देखो आपको देखना है श्रिल वॉइस एंड दी हॉर्स वॉइस बेसिकली, राइट। श्रिल वॉइस मतलब बहुत ही ज्यादा पतली आवाज, ठीक है। तो ये ऐसी आवाज होती है जो काफी ज्यादा यू कैन से हाई फ्रीक्वेंसी की होती है। श्रिल वॉइस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अ हाई पिच साउंड इज कॉल्ड अ श्रिल साउंड, जैसे कि हमिंग ऑफ अ बी, साउंड ऑफ गिटार, दे आर लाइक हाई पिच साउंड। इवन आई एम टेलिंग यू, इवन जब कोई चिल्लाता है तो वो भी एक हाई पिच साउंड होती है, ठीक है। अब वहीं पे अगर हम बात करें लो पिच साउंड की, जिसे हम बोलते हैं भारी आवाज या फिर मोटी आवाज जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अ लो पिच साउंड इज कॉल्ड हॉर्स साउंड, जैसे कि लायन जब रॉर करता है तो उसकी जो साउंड है, ठीक है, वो उसमें काफी कम पिच रहती है, दैट मीन्स लो फ्रीक्वेंसी रहती है, ठीक है। वो मोटी आवाज होती है, पतली आवाज नहीं होती है, ठीक है। सो इफ वी टॉकिंग अबाउट अ हाई पिच or a shrill voice, you are going to get a very much, you can say, पतली आवाज और भारी आवाज। These are the two one by which you are going to get the low and the high pitch. अब अगर ये हम ग्राफ के बेसिस पे दिखाने की कोशिश करें, what it would be? So you can see up to here, आप जब कभी भी लो पिच और हाई पिच की बात करते हैं, तो ये जो लो पिच और हाई पिच की जब हम बात कर रहे होते हैं, वी टॉक अबाउट it's about the number of vibrations per second, ठीक है। number of vibrations per second and number of vibrations आपको इससे कैसे पता चलेंगे? let's see that 1 second के अंदर you can see up to this is a 1 wave, this is 2 wave, ठीक है, this is 1 wave, this is 2 wave, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए this is 1 second, ठीक है। तो एक वेव हो रही है 1 सेकेंड में, गॉट इट। पर यहाँ पर देखिए 1 वेव 2 वेव, एक सेकेंड के अंदर, सेम टाइम है, एक सेकेंड के अंदर देयर आर 2 वेव्स, गॉट इट। 1 वेव 2 वेव, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुआ ना, 2 वाइब्रेशंस हो गए यहाँ पे, राइट। 2 वाइब्रेशंस इन अ सिंगल सेकेंड, एंड दैट इज द रीजन इट हैज अ हाई फ्रीक्वेंसी, ओके। एंड दैट इज रीजन हाउ यू कैन से अबाउट अ हाई फ्रीक्वेंसी एंड अ लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन। तो आप लोग किससे देख सकते हैं कितनी वेव्स हैं 1 सेकेंड के अंदर, यू आर गोइंग टू गेट दैट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नंबर ऑफ 3 वेव्स है, 3 वेव्स है 1 सेकेंड में, ज्यादा फ्रीक्वेंसी, 2 वेव्स है 1 सेकेंड में, कम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आप ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक जो साउंड का रहता है वो रहता है लाउडनेस और द सॉफ्टनेस, राइट। तो अगर आप तेजी से बोल रहे हो, ठीक है, दैट मीन्स यू आर गिविंग मच मोर एनर्जी, ठीक है। लाउड वॉइस इज द यू कैन से एम्पलीट्यूड, ठीक है, मतलब वो आपको एक तरीके से बताती है एम्पलीट्यूड, वो एक फिजिकल इंटरप्रिटेशन है कि तुम एम्पलीट्यूड को किस तरीके से बता रहे हो। द मोर द एम्पलीट्यूड द मोर लाउड इज द साउंड, ठीक है। जैसे कि एनर्जी वी आर टॉकिंग अबाउट, हाई एनर्जी लो एनर्जी, ठीक है, दैट इज द मेन थिंग वी आर गोइंग टू गेट दैट। अब यहाँ पे देखिए लाउडनेस और सॉफ्टनेस, loudness or softness of a sound wave is a sensation that depends upon its amplitude. आप अगर तेजी से बोलते हो, ठीक है, बहुत जोर से बोलते हो, यू आर गोइंग टू से इन अ लाउड वॉइस, और बहुत स्लोली धीरे से कान में फुसफुसाहट के से बोल रहे हो, दैट इज अ सॉफ्ट वॉइस, ठीक है। अब देखो लाउड वॉइस क्योंकि हम जोर से बोल रहे थे, वी आर गिविंग मच मोर एनर्जी इन इट। अब हम ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं, सोचिए अगर हम ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं तो पार्टिकल जिसके ऊपर वो ज्यादा एनर्जी गिरी है वो तो दूर तक जाएगा, क्योंकि ज्यादा एनर्जी है, ज्यादा जोर का इसको एक धक्का मिल रहा है, राइट, उसको एक एनर्जी मिल रही है बाय विच इट इज गोइंग लाइक दिस, राइट। तो इसका मतलब अगर तुम बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ बोलने वाले हो, बहुत ही लाउड बोलने वाले हो, तो मतलब पार्टिकल्स जो होने वाले यहाँ पर प्रेजेंट एयर के वो बहुत दूर तक जाएंगे, एंड दैट इज द रीजन, क्योंकि वो दूर तक जाएंगे, उनका डिस्प्लेसमेंट दूर होगा, दूर तक होगा, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू गेट अ हाई एम्पलीट्यूड ओवर देयर, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें किस चीज की, अगर हम बात करें स्मॉल एनर्जी की, ठीक है, जैसे हम कान में फुसफुसाकर बोलते हैं तो सेकेंड पर्सन को भी सुनाई नहीं देता, राइट। तो एनर्जी ही इतनी कम होती है कि वो सिर्फ हमारे उस पर्सन तक ही जाती है भाई जिसको हम कहना चाहते हैं, कि कान में कहना चाहते हैं,
राइट तो जब हम धीरे बोलते हैं, सॉफ्ट बोलते हैं, तो एनर्जी जो हम इन्वायरमेंट में दे रहे हैं, साउंड एनर्जी जो हम क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज वेरी 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 लो। अब साउंड एनर्जी लो है, अब देखो एक पार्टिकल है, उसको धीरे से ऐसे धक्का मारोगे, थोड़ी सी एनर्जी धक्का मारोगे तो पार्टिकल बस इतना दूर जा पाएगा, ज्यादा दूर नहीं गया ना, तो एम्पलीट्यूड कम हो गया। ठीक है, अगर कम एम्पलीट्यूड होता है दैट इज अ सॉफ्ट वॉइस, अगर ज्यादा एम्पलीट्यूड होता है दैट इज अ लाउड वॉइस। ठीक है, तो अब एक और चीज भाई, जो लाउड वॉइस होती है वो बहुत दूर तक जाती है ना। अब जैसे टीचर है, वो क्लास में अगर बोल रही हैं, तेजी से बोल रही है, बहुत लाउडली बोल रही हैं अगर, तो क्लास में पीछे बैठे बच्चे को भी सुनाई देगा। पर अगर वो सॉफ्टली बोलते हैं तो आगे के 2-3 बच्चों को सुनाई देगा और पीछे के सारे बच्चे ऐसे के ऐसे नहीं सुन पाएंगे, राइट। तो लाउड और सॉफ्ट, इन दोनों का ये डिफरेंस है। अब लाउड में एक तो ज्यादा एनर्जी जाती है, साथ ही साथ दूर तक एनर्जी जाती है। सॉफ्ट वॉइस की अगर हम बात करें तो कम एनर्जी होती है, दैट इज वाई इट इज लाइक गोइंग अप टू द लेस, यू कैन से थोड़ी देर दूर तक जाती है, वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती है, तो पीछे बैठने वाले बच्चे को तो बिल्कुल नहीं सुनाई देगा, राइट। तो देखिए यहाँ पर एक जो लाउड साउंड वेव होती है वो ज्यादा एनर्जी कैरी करती है, साथ ही साथ वो लार्ज डिस्टेंस तक सुनी जा सकती है। ठीक है, क्योंकि उसके पास ज्यादा एनर्जी है, एंड दैट इज द रीजन कि वो दूर तक जा सकती है, दूर तक ट्रैवल कर सकती है। ऑलराइट, अब आप कैसे पहचानोगे? इस तरह का ग्राफ अगर आपको दे दिया तो आप कैसे पहचानोगे कि भाई ये लाउड वॉइस है या फिर ये नहीं है? ठीक है, लेट्स सी हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट। पहले देख ले इनकी पिच बराबर है या नहीं। पिच में हमें क्या देखना था, जब भी वन वेव हो रही है तो उसमें कितना टाइम लग रहा है। अब आप देखो यहाँ पर टाइम जो है इक्वल इक्वल, इसमें हाफ वेव तो इसमें भी हाफ वेव, इसमें हाफ वेव तो इसमें भी हाफ वेव, तो दैट मीन्स वी कैन से कि ये जो टाइम यहाँ पे बता रहे हैं वो बिल्कुल इक्वल है, दोनों का फ्रीक्वेंसी इक्वल है। ठीक है, अब हम देखते हैं लाउड की यू कैन से कैसे पहचाना जाए बेसिकली लाउडनेस और सॉफ्टनेस। ठीक है, अब हमें चाहिए एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी और द पार्टिकल, ठीक है, फ्रॉम द मेन पोजीशन टू द एक्सट्रीम यू कैन से डिस्प्लेसमेंट, राइट। अब आप देखो मेन पोजीशन से एक्सट्रीम, यानी कि ये इसका हाईएस्ट यू कैन से दिस इज द इसका हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट, इससे ज्यादा दूर नहीं जा रहा है पार्टिकल, है ना, ये इसका हाईएस्ट है। बट अगर यहाँ पे बात करें तो इस पार्टिकल के लिए इतना ज्यादा है, तो डिस्प्लेसमेंट देखो किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, किसका ज्यादा है, इसी का ज्यादा है ना, ये डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, एंड दैट इज द रीजन, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। तो क्योंकि इसका ये एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है, दैट इज द रीजन कि ये जो है एक लाउड वॉइस है। ठीक है, दैट इज अ लाउड वॉइस और द लाउड साउंड वेव। ठीक है, क्योंकि इसके पास ज्यादा एम्पलीट्यूड है, ज्यादा एम्पलीट्यूड मीन्स मोर एनर्जी, मोर लाउडनेस, और वहीं पे इसकी बात करें दैट इज वेरी स्मॉल। तो अब तुम ग्राफ से ये पता कर सकते हो कि भाई फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है। सेकेंड थिंग, अब आप ये पता कर सकते हैं कि कोई वॉइस लाउड है या नहीं है। ठीक है, ये आपको पता चल सकता है, एम्पलीट्यूड से पता चल सकता है। चलिए अब हम थर्ड जो है वो देखते हैं, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड दैट इज क्वालिटी। ठीक है, दैट इज क्वालिटी। अब आप खुद से सोचिए कि चलो मान लीजिए आपकी आंखों पे हम क्या कर देते हैं, एक पट्टी बांध देते हैं, ठीक है, और आपके पीछे 2 फ्रेंड्स आपके खड़े कर देते हैं, है ना, और कोई भी फ्रेंड उसमें से बोलेगा और आपको पहचानना होगा कि वो किसकी आवाज़ है, तो आप बिल्कुल सटीकता से पहचान लोगे कि भाई ये मेरे इस दोस्त की आवाज़ है। डेफिनेट सी बात है, क्यों, दोस्त की आवाज़ क्यों पहचान पाओगे। ठीक है, और इवन आई एम टेलिंग यू, आप सिर्फ उसकी आवाज़ कान में पड़ते ही पहचान जाते हो कि भाई ये तो ये बोल रहा है ना, मतलब ये पर्सन स्पेसिफिकली बोल रहा है जिसे आप जानते होंगे। बट द फैक्ट इज, कैसे पता चला, क्योंकि सबकी आवाज़ होती है डिफरेंट। जैसे सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड, उसके बावजूद भी तबले की आवाज़ आपको हमेशा गिटार की आवाज़ से डिफरेंट ही लगेगी, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी। ये जो क्वालिटी या फिर टिम्ब्रे हम लोग बोल सकते हैं, ये जो यू कैन से फीचर है कैरेक्टरिस्टिक है साउंड का, ये 2 सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड वाली आवाज़ों को भी अलग अलग बताता है। क्योंकि हम ये बात जानते हैं, अगर हम सेम एम्पलीट्यूड पे तबला बजाएं, सेम फ्रीक्वेंसी पे तबला बजाएं, या फिर हम सेम एम्पलीट्यूड और सेम फ्रीक्वेंसी पे गिटार बजाएं, वी आर गोइंग टू गेट द डिफरेंट साउंड, हमको अलग अलग आवाज़ें आती हैं। ठीक है, रीजन इज दिस क्वालिटी, ठीक है, दिस टिम्ब्रे। तो बेसिकली ये हमको भीड़ भाड़ वाले इलाके से भी हमारे फ्रेंड की आवाज़ अगर हमारे कानों में पड़ जाती है, फिर भी हमें समझ में आ जाता है कि भाई ये तो हमारा फ्रेंड है,
ये तो बोल रहा है, राइट, यही जो आवाज आई है वो मेरी फ्रेंड की आवाज है, राइट, दैट इज द मेन थिंग। ये कैसे आपने पहचाना, उस क्वालिटी से पहचाना जिसे आप अभी तक जानते थे, ठीक है। अगर आप क्वालिटी से जानते थे तो आपको पता चल जाएगा। आपको फ्लूट की आवाज सुनाएंगे, आप समझ जाओगे फ्लूट की आवाज है। तबले की आवाज सुनाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा ये तो तबले की आवाज है। द रीजन इज आपको पता है कि जो ये क्वालिटी है वो अलग अलग आवाज़ों की अलग अलग होती है, और आपको पता है कि भाई इस तरीके की आवाज़ तो सिर्फ फ्लूट में से आती है या फिर सिर्फ तबले में से आती है, ठीक है। द रीजन इज यू नो द क्वालिटी और टिम्ब्रे ऑफ द साउंड, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए कि कोई भी दो साउंड आपस में सिर्फ अपने क्वालिटी की वजह से चेंज होती है, और ये क्वालिटी सबकी कैसे कैसे डिफरेंट होती है और क्यों डिफरेंट होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द वेव फॉर्म्स, ठीक है। जब कोई भी आवाज़ जब एमिट होती है तो उसकी कुछ वेव फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन दोज वेव फॉर्म्स हमें पता चलता है कि कोई भी जो साउंड है वो डिफरेंट है ना। इसी बेसिस पे हम कह पाते हैं साउंड डिफरेंट होने का रीजन ही यही है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द वेव फॉर्म, ठीक है। एंड दैट इज द रीजन यू आर गोइंग टू गेट। जैसे देखिए ये भी एक वेव है ना, ये भी एक वेव है। अब आप यहाँ देखिए इसका एम्पलीट्यूड ए है, इसका एम्पलीट्यूड भी ए है, तो एम्पलीट्यूड इक्वल। अब आप देखो ये जो सिंपली लाइन है यहाँ तक वन वेव है और यहाँ पे भी वन वेव है, तो मतलब फ्रीक्वेंसी इक्वल, राइट, वन नहीं हाफ वेव है, राइट। सो बेसिकली यहाँ पर एम्पलीट्यूड भी इक्वल है, फ्रीक्वेंसी भी इक्वल है, फिर भी हम देखिए ये जो ग्राफ जा रहा है, ये जो कर्व जा रहा है ये डिफरेंट है। दिस इज द वेव फॉर्म, ठीक है। इस वेव फॉर्म की वजह से आप देखो ये सर्कुलर है और ये ट्राइंगुलर है ना, इसी को मैं बोल रही हूँ वेव फॉर्म। सो बेसिकली जस्ट बिकॉज ऑफ दीज वेव फॉर्म्स आपको डिफरेंट आवाज सुनाई देंगी। अगर फिर भी आपको जैसे सेम फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड की आवाज सुनाई जाए तो भी आप पहचानेंगे कि ये तो अलग अलग दो आवाजें हैं, ठीक है। एंड दैट इज व्हाट हेल्प्स इन दी यू कैन से क्वालिटी जो फैक्टर है, ये हमें हेल्प करता है इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने में, टू डिफरेंट वॉइसेस को रिकॉग्नाइज करने में, ठीक है। फटाफट से नोट कर लीजिए। चलिए अब हम जो है बाकी की चीज़ें देखते हैं। ऑलराइट, चलिए इंटेंसिटी की बात करते हैं। सो देखिए इंटेंसिटी जो होती है दैट मीन्स कितना एनर्जी कितने टाइम में कितने एरिया से जा रही है, दैट इज इंटेंसिटी, ठीक है। अब ये जो इंटेंसिटी होती है, अब आप देखो यहाँ पे ये है जो चिड़िया बोल रही है, बहुत स्लो बोल रही है ना, यू आर गोइंग टू गेट दिस मच ऑफ थिंग। पर आप देखो ज्यादा एनर्जी के साथ बोल रही है, दैट मीन्स इट हैज अ हाई एम्पलीट्यूड, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू गेट द हाई साउंड एनर्जी, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर गोइंग टू गेट दिस मच ऑफ वेव, दिस इज इंटेंस वेव्स हियर। यहाँ पे क्या है, ये इंटेंस वेव है, द मोर द एनर्जी द मोर इंटेंस इट इज, ठीक है। अब हम देखते हैं इंटेंसिटी को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे देखिए इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड इज डिफाइंड एज द साउंड एनर्जी transferred per unit time per unit area placed perpendicular to the direction of the propagation of sound। तो देखिए यहाँ पे अगर आप इंटेंसिटी की बात करें, कैसे हम उसको फॉर्मूले के बेसिस पे लिख सकते हैं। सो इंटेंसिटी वुड बी, ठीक है, इट वुड बी साउंड एनर्जी, ठीक है, पर यूनिट एरिया, यहाँ पर हम लिख देते हैं एरिया मल्टीप्लाइड बाय टाइम। सो यू आर गोइंग टू गेट कि भाई कितनी साउंड एनर्जी कितने टाइम में कितने एरिया से जा रही है। ऑलराइट, दिस इज द इंटेंसिटी, द मोर साउंड एनर्जी द मोर इंटेंस द साउंड इज, ठीक है, दैट इज गोइंग एज द इंटेंसिटी। अब देखो यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो एक ऑब्जेक्टिव फिजिकल क्वांटिटी है। ऑब्जेक्टिव फिजिकल क्वांटिटी का क्या मतलब हुआ, ऑब्जेक्टिव फिजिकल क्वांटिटी का मतलब हुआ कि जितना भी एनर्जी जो भी जा रहा है वो सभी लोगों के लिए सेम है, समझे, दैट इज एन ऑब्जेक्टिव, सभी लोगों के लिए सेम। एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उनका मतलब क्या होता है, चार ऑप्शंस मिलते हैं, उन चारों में से सभी बच्चों के लिए एक ही ऑप्शन सही रहेगा। अगर ए ऑप्शन करेक्ट है तो ये ए ऑप्शन सभी बच्चों के लिए तो करेक्ट होगा ना, है ना।
दैट इज द मेन थिंग। सब लोगों के लिए अगर सेम वैल्यू अगर आती है, दैट इज द ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी, एंड इंटेंसिटी के साथ यही होता है, ठीक है। तो देखो कितनी साउंड एनर्जी कितने एरिया में कितने टाइम में जा रही है। सो व्हाट इज दिस, हम कैसे समझें, क्या माने? तो इसमें आप देखिए, लेट मी टेल यू। देखो मानो कि भाई ये है एक एरिया, 1 यूनिट एरिया है ये, ठीक है, और यहाँ पे एक ना सोर्स ऑफ साउंड है, यहाँ से साउंड आ रही है, ठीक है, सभी डायरेक्शंस में ये ऐसे साउंड आ रही है। तो इस एरिया पे, इस पर्टिकुलर एरिया पे कितनी साउंड एनर्जी जा रही है, इसमें से कितनी साउंड एनर्जी जा रही है इस यूनिट एरिया में से 1 सेकेंड में कितनी साउंड एनर्जी जा रही है, दैट इज द इंटेंसिटी एट दिस प्लेस। इस जगह पे इंटेंसिटी पता चली। अब तुम खुद से सोचो, यहाँ पे एक जा रही है, दूसरी सिर्फ टच होके जा रही है। अगर मैं यहाँ पे एरिया रख देती हूँ तो इसमें 2 जा रही हैं रेज, मतलब द मोर एनर्जी, है ना। तो इस पॉइंट पे जो इंटेंसिटी है, साउंड एनर्जी की जो इंटेंसिटी है, दैट इंटेंसिटी इज मोर देन दिस प्लेस। हम एक प्लेस पे इंटेंसिटी डिसाइड कर सकते हैं अगर हम वहां पर किसी भी प्लेस पर देखें कि यूनिट एरिया में 1 सेकेंड के अंदर कितना एनर्जी जा रही है, वो होती है उसका इंटेंसिटी। और अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग इंटेंसिटी होती हैं, ठीक है, एंड दैट डिपेंड्स ऑन द एनर्जी, एरिया एंड द टाइम, ठीक है। तो दैट इज द इंटेंसिटी, और ये है एक ऑब्जेक्ट क्वांटिटी। मतलब सभी लोगों के लिए अगर एक चीज फिक्स है कि भाई इस प्लेस पर अगर इंटेंसिटी जो है वो जैसे मान लीजिए अगर हम देखें जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर या फिर वॉट पर मीटर स्क्वायर अगर हम देखें, तो लेट इट बी मान लो 20 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, 20 वॉट पर मीटर स्क्वायर एक जगह पे इंटेंसिटी है, तो वो सभी लोगों के लिए सेम वैल्यू है। उस जगह पे 20 वॉट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी ही रहेगी, किसी और पर्सन के लिए वो चेंज नहीं होगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, चेंज होने वाली फिजिकल क्वांटिटी के बारे में एग्जाम्पल देती हूँ, लाउडनेस एंड सॉफ्टनेस। अब देखो सभी के कानों के लिए, जैसे आपके लिए मान लीजिए आपको पंजाबी सॉन्ग बहुत पसंद है, ठीक है, लेट इट बी, आपको पंजाबी सॉन्ग्स बहुत पसंद है, और जब आप उन्हें सुनते हैं तो आप काफी लाउडली सुनते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है जब आप लाउडली सुनते हैं, ठीक है। वहीं पर कुछ लोगों को शहनाई बहुत पसंद रहती है एंड वो बहुत ही स्लो वॉइस पे धीरे सुनना पसंद करते हैं, ठीक है। तो उन लोगों के लिए पंजाबी सॉन्ग, जो कि लाउड पंजाबी सॉन्ग है, वो उनको शोर लगेगा क्योंकि उनको वो चीज़ पसंद नहीं है। सो अलग अलग कानों की कैपेसिटी, अलग अलग लोगों के लिए उनका साउंड जो उनको पसंद है वो ज़्यादा ऊंचा सुनते हैं, या फिर वो कम सुनाई देता है, या फिर उनको ये चीज़ पसंद नहीं होती, उनको शोर लगता है, ज़्यादा तेज़ आवाज़। तो ये अलग अलग वैल्यू, आपने जितना वॉल्यूम सेट किया है, ठीक है, वो आपके लिए प्लीजेंट है, किसी दूसरे के लिए वो शोर हो सकता है, ठीक है। तो ये 2 अलग अलग पर्सन्स के लिए अलग अलग वैल्यू हो गई सेम साउंड की, राइट। यही नहीं होता है इंटेंसिटी में। इंटेंसिटी में ये दोनों वैल्यू वुड बी द सेम, इन दोनों पर्सन्स के लिए इंटेंसिटी जो होगी वो सेम रहेगी इस प्लेस पे, ठीक है। दैट इज वाई इट इज एन ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी। और जो अलग अलग पर्सन्स के लिए अलग अलग रहती है, दैट इज नोन एज द सब्जेक्टिव क्वांटिटी, ठीक है। यही चीज मैं आपको बताना चाहती थी। अब देखिए इंटेंसिटी जो है वो किस पे, रिस्पॉन्स ऑफ आवर ईयर्स पे डिपेंड नहीं करती। जैसे कि सॉन्ग्स जो होते हैं, कब शोर है और कब तुम्हारे लिए वो सॉन्ग है, वो तुम्हारे कानों पे डिपेंड करता है, राइट। तुम्हें जो चीज़ अच्छी लगती है, प्लीजेंट लगती है, वो तुम्हारे लिए प्लीजेंट है, तुम्हें जो शोर लगता है वो तुम्हारे लिए शोर है, राइट। हो सकता है तुम्हारे लिए जो शोर है वो किसी और के लिए प्लीजेंट साउंड हो, सही बात है। तो इट डिपेंड्स ऑन ईयर ऑन, ठीक है, जिसका जो कैपेसिटी है, जिसको जो चीज़ें पसंद है, ये उस चीज़ों पे डिपेंड करता है बेसिकली। इट डिपेंड्स ऑन ईयर्स एंड दैट इज वाई हर एक पर्सन के लिए डिफरेंट होगा, एंड दैट इज द रीजन यू आर गोइंग टू गेट अ सब्जेक्टिव क्वांटिटी हियर, ठीक है। साउंड या जो बातें कर रहे हैं दैट इज द सब्जेक्टिव क्वांटिटी, लाउडनेस, सॉफ्टनेस, ये सबके लिए डिफरेंट होती है। बट अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें इंटेंसिटी की, तो इट वुड बी फिक्स्ड फॉर एवरीबॉडी, दैट इज व्हाई इट इज एन ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी, ठीक है। अब देखेंगे इसका जो एसआई यूनिट होता है इंटेंसिटी का, वो क्या होता है, जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अब आपको तो पता है भाई कि जूल पर सेकेंड को अपन क्या कहते हैं, पावर की यूनिट, राइट, दैट इज दी वॉट। तो वॉट पर मीटर स्क्वायर वुड बी दी इंटेंसिटी का यूनिट, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस एंड द
इंटेंसिटी। लाउडनेस सबके लिए डिफरेंट होती है, किसी के लिए सेम साउंड लाउड है, किसी के लिए प्लीजेंट है, किसी के लिए बहुत ही कम है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन ईयर एंड दैट इज व्हाई इट इज इन सब्जेक्टिव क्वांटिटी। तो देखो, लाउडनेस इज अ सब्जेक्टिव क्वांटिटी, इट डिपेंड्स अपॉन द सेंसिटिविटी ऑफ द ह्यूमन ईयर। तुम्हारा ईयर किन साउंड के लिए सेंसिटिव है, तुम्हारे ईयर को कौन सी साउंड बहुत ही प्लीजेंट लगती है, बहुत ही ज़्यादा शोर लगता है, या फिर बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल लगता है, राइट। बट ऐसा अलग अलग चीज़ें होती हैं अलग अलग कानों के लिए, ठीक है। लाउडनेस विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर्स। अब आप देखिए, अ साउंड मे बी लाउड फॉर अ पर्सन but the same sound may be feeble for another who is hard of hearing, right? तो basically that is true, right? किसी के लिए, तुम्हारे लिए जो loud sound है, हो सकता है वो ही किसी के लिए बहुत ही small sound है, बहुत ही soft sound है, उसको वही सुनाई में देता हो, right? तो that is different for different body, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इंटेंसिटी के लिए, इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड इज एन ऑब्जेक्टिव फिजिकल क्वांटिटी, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ अ ह्यूमन ईयर। ये सेंसिटिविटी पे डिपेंड नहीं करता है, ये सिंपली एक वैल्यू है, यू कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू, ठीक है। आपको वो वैल्यू पता चल जाएगी एंड दैट वैल्यू वुड बी फिक्स्ड फॉर एवरीवन, ठीक है। सभी के लिए सेम इंटेंसिटी है वो, फिर वो नहीं चेंज हो सकती, ठीक है। लाउडनेस को मेजर नहीं किया जा सकता, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी, एज अ फिजिकल क्वांटिटी यू कैन नॉट मेजर इट, ठीक है, बिकॉज इट इज जस्ट सेंसेशन दैट कैन बी फील्ड ओनली। ये सिर्फ महसूस की जा सकती है बेसिकली, अगर हम बोलें तो लाउडनेस ऑफ अ साउंड वो महसूस किया जा सकता है, राइट। लेकिन जो इंटेंसिटी है, इसे हम एज अ फिजिकल क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये हम बिल्कुल इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज द रीजन इट इज एन ऑब्जेक्टिव वन, है ना। बाकी दो ये है सब्जेक्टिव है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सोनिक बूम की। सोनिक बूम एक काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड हम सोनिक बूम को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें भी आपको एक नई चीज़ मिलेगी। वो चीज़ क्या पता चलेगी कि ये सोनिक बूम तब बनता है जब कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड साउंड की स्पीड से तेज हो जाए, ठीक है। अब जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रही है तो वो साउंड की वेलोसिटी, यानी कि अगर आप एवरेज अगर बोले तो इट वुड बी लाइक 374 मीटर पर सेकेंड, अगर हम नॉर्मली बोलें तो, ठीक है, 374 पर मीटर पर सेकेंड, दैट इज द साउंड की स्पीड। अब अगर इस स्पीड से भी तेज कोई ऑब्जेक्ट जाएगी, तब जो एनर्जी, जो शॉक वेव जनरेटेड होंगी, उस वक्त जो एनर्जी होगी, दैट वुड बी द साउंड सोनिक बूम, राइट। एंड जो वेव जनरेट हो रहे, दैट इज द शॉक वेव, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज दैट। तो देखो, इस वक्त ये आप पिक्चर देख रहे हैं, देखिए जब कभी भी साउंड वेव जनरेट होती है तो वो चारों तरफ में जनरेट होती है, ठीक है। जैसे मैं बोल रही हूँ, अभी मैं बोल रही हूँ, तो जो साउंड जनरेट हो रही है वो सभी डायरेक्शंस में जा रही है, सभी डायरेक्शन में जा रही है। तो जब कभी भी कोई भी साउंड वेव सभी डायरेक्शंस में जाती है तो वो कैसे जाती है, सर्कुलर फॉर्म्स में जाती है, ठीक है। सो अभी हम बात करते हैं, ये छोटा सा पॉइंट जो है, दिस इज द सोर्स ऑफ द साउंड, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब ये है सोर्स ऑफ द साउंड, और उसकी जब इसने साउंड को एमिट किया, जब इसने साउंड को एमिट किया तो साउंड इस तरीके से फैल रही है सभी डायरेक्शंस में, ठीक है, लाइक इन दी सर्कुलर फॉर्म्स। अब यहाँ पे क्या है, ये जो साउंड है, ये जो सोर्स है, ये तो मूव कर रहा है, बट ये बहुत धीरे मूव कर रहा है, मतलब साउंड की स्पीड से कम मूव कर रहा है, कम स्पीड पे मूव कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से होगा कि ये बिल्कुल मिडल में नहीं होके थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि दिस इज मूविंग हियर, है ना। तो जो सर्कुलर सर्कल्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं, वो सारे के सारे सर्कल्स अब हल्के हल्के एक तरफ हो गए हैं, है ना। अब जब यहाँ पर जो सोर्स की स्पीड है वो साउंड की स्पीड के बिल्कुल बराबर हो जाएगा, जब सोर्स की स्पीड साउंड की स्पीड के बिल्कुल बराबर हो जाएगा, तो देखो सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी, क्योंकि साउंड जनरेट भी हो रही है और यहाँ पे उतनी ही तेजी से जो यहाँ पर जो पर्सन है, जो ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रही है, ठीक है। तो सारी की सारी जो साउंड वेव जनरेट हो रही है वो कुछ इस तरीके से है, क्योंकि तेजी के साथ जैसे जिस स्पीड पे साउंड चल रही है उसी स्पीड पे ऑब्जेक्ट भी चल रही है, ठीक है। अब अगर ऐसा हो जाए कि साउंड की स्पीड से ज़्यादा तेज ऑब्जेक्ट चलने लगे तो क्या होगा, वो बहुत आगे बढ़ जाएगी, वो बहुत आगे बढ़ जाएगी। एंड दैट इज द रीजन कि देखो कुछ इस तरीके से मिलेगा। फिर ये जो सर्कल्स है ना, ये जो सर्कल्स है ये पीछे छूट रहे हैं, ये पीछे छूट रहे हैं, और जो ऑब्जेक्ट है वो आगे जा रही है, पीछे एक कोन जैसा बन जाता है ना, जिसके एपेक्स पे है वो ऑब्जेक्ट, और वो आगे बढ़ते जा रही है तेजी से, ठीक है। ये जो वेव्स जनरेट हो रही हैं, इन्हीं वेव्स की वजह से यू आर गोइंग टू गेट अ शॉक वेव एंड दिस इज नोन एज द सोनिक बूम, ठीक है।
let's study more about these. When a body moves with speed which is greater than the speed of sound in air, then it is said to be traveling at a supersonic speed. ठीक है, जब कभी भी ऐसा होता है साउंड स्पीड की, मतलब स्पीड जो है साउंड की उससे भी तेजी से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है तो उसे हम बोलते हैं कि वो सुपरसोनिक स्पीड से मूव कर रही है। जैसे कि हमारे जेट होते हैं, ठीक है, सुपरसोनिक जेट है ना, ये जो होते हैं वो काफ़ी तेज़ी से साउंड जो है मूव करते हैं, साउंड की स्पीड से काफ़ी तेज होते हैं उनका स्पीड। एंड आपको जब कभी भी ऐसा होता है तो उनकी आवाज़ कैसे सुनाई देती है, बहुत लाउड सुनाई देती है, राइट। उनका जो यू कैन से प्रेशर रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। जेट फाइटर्स, बुलेट्स एक्सेट्रा ऑफन ट्रैवल एट सुपरसोनिक स्पीड। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि ऐसी ऑब्जेक्ट्स के जो कि सुपरसोनिक स्पीड पर ट्रैवल करते हैं, ठीक है। फिर देखिए, एंड व्हेन दे डू सो दे प्रोड्यूस अ शार्प लाउड साउंड कॉल्ड अ सोनिक बूम, ठीक है। तो ये जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट सुपरसोनिक स्पीड से मूव करती है तो वो काफ़ी ज़्यादा लाउड और शार्प साउंड प्रोड्यूस करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस रहता है, and that's how you are going to get a sonic boom. That sound is known as the sonic boom. ठीक है, अब देखिए, the source moves at a speed greater than that of the sound. Sound wave traveling at the speed of sound are left behind. You can see this. जब ये ऑब्जेक्ट जो है बहुत ही तेजी यानी कि स्पीड जो साउंड की है उससे भी ज़्यादा तेजी से मूव करता है तो वेव्स पीछे छूट जाती हैं और वो आगे मूव करता है, ठीक है। जो साउंड वेव एमिट हुई हैं वो पीछे रह गई हैं, ठीक है, बाकी ऑब्जेक्ट आगे मूव करता है क्योंकि वो उससे भी ज़्यादा तेजी से मूव कर रहा है। एंड यहीं पर हमें सोनिक बूम मिलेगा, यानी कि सुपर 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 सोनिक स्पीड से मूव करने वाली ऑब्जेक्ट का सोनिक बूम आपको मिलेगा, राइट। देखिए, जब कभी भी इस तरीके से बात करते हैं, यहाँ पे जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट आगे जा रही है वैसे वैसे ये जो साउंड वेव्स पीछे जनरेट हो रही है ना, देख रहे हैं आप, ये जो पीछे साउंड वेव जनरेट हो रही हैं ये पीछे छूट जाती हैं, राइट। एंड जितना भी जो वेव्स हैं वो सारी की सारी पीछे छूट जाएंगी, ऑब्जेक्ट आगे निकलते जाएगा, ठीक है। अब जब ऑब्जेक्ट आगे निकल रहा है, पीछे सारी साउंड वेव छूट चुकी है तो पीछे कोन जैसा फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर एक कोन टाइप का फॉर्म हो गया है जिसके एपेक्स पे, यानी जिसके बिल्कुल यू कैन से एट दिस पॉइंट दिस इज द एपेक्स ऑफ अ कोन, ठीक है। तो इसके एपेक्स पे, इसके इस पॉइंट पर वो ऑब्जेक्ट रहती है और वो पीछे रहती है उसकी वेव्स एज अ कोन। अब यहाँ पे एक बात सुनो, ये जो कोन बन रहा है इसकी जो आउटर सरफेस है, कोन की जो आउटर सरफेस है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर वेव्स रहती हैं, ठीक है। देखिए, हाई प्रेशर लेयर्स ड्यू टू दी साउंड वेव्स ऑरिजिनेटिंग एट डिफरेंट पॉइंट बंच टुगेदर। क्या होता है, अलग अलग पॉइंट्स पे जो साउंड वेव जनरेट हो रही हैं वो सारी की सारी इकट्ठी हो जाती है, क्यों? क्योंकि वो तो पीछे रह जाती हैं, सो दे गेट कलेक्टेड, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रेशर वहाँ पे रहता है सभी लेयर्स पे, ठीक है। Actually, these layers fall on the surface of an imaginary cone of which OA, OB is a part. तो this is the cone OA and OB. ये जो कोन है इसके ऊपर उसकी सरफेस पे सारी की सारी वेव्स रहती हैं, ठीक है। वो इस तरीके से रहती हैं कि वो उसके सरफेस फॉर्म करे, ऑलराइट। द टोटल प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ दिस कोन इज वेरी हाई। अगर हम इस सरफेस की बात करें, ठीक है, ये जो सरफेसेस हैं इन पर जो टोटल प्रेशर रहता है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है, ठीक है, क्योंकि सारी साउंड वेव्स क्या हैं, कलेक्ट हो जाती है, ठीक है, दैट इज द रीजन। अब देखिए, द सोर्स इज एट द एपेक्स ऑफ दिस कोन। सोर्स देखो एपेक्स पे रहता है क्योंकि वो आगे आगे बढ़ते चला जाएगा तो वो बिल्कुल पॉइंट पे एपेक्स पे रहेगा कोन के। एज द सोर्स मूव अहेड इट ड्रैग्स द कोन टुगेदर विद इट। जैसे जैसे सोर्स आगे जाएगा वो जो कोन है वो अपने साथ पीछे पीछे लेते आएगा, ठीक है, क्योंकि वो तो साउंड तो पीछे जा रही है, ठीक है, साउंड तो रिलीज होकर पीछे जा रही है, वो और डायरेक्शंस में मूव ही नहीं कर पा रही बिकॉज ऑफ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। When the surface of the cone reaches a person, the ears experience a sudden increase in the pressure. अब देखिए, जैसे जैसे ये साउंड वेव्स हैं, लेट इट बी कि यहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है, लेट इट बी यहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ है और ये जो वेव्स हैं वो उसके कान में, क्योंकि हाई प्रेशर की वेव्स हैं तो अचानक से उसके कान के पर्दे पर अचानक से बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर आएगा, ठीक है, और उसके ठीक बाद ये वाला पूरा का पूरा जो वेव्स है वो तो चले जाएंगे आगे, वो तो चले जाएंगे ना आगे, तो उसके बाद इस पर्सन के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं रहेगा तो अचानक से लो प्रेशर हो जाएगा।
दैट इज हाउ दे आर गोइंग टू गेट अ वेरी शार्प एंड लाउड नॉइस इनसाइड इट। अचानक से कान के पर्दे पे प्रेशर बढ़ना फिर कम हो जाना, इसको ही हम एक तरीके से लाउड साउंड लेते हैं, ठीक है, लाउड एंड शार्प वी कैन से। आफ्टर द सरफेस क्रॉसेस हिम, जैसे ही ये सरफेस क्रॉस कर जाती है, उससे चले जाती है, द प्रेशर इज सडनली रिड्यूस, अचानक से जो हाई प्रेशर कान में था वो रिड्यूस हो जाता है, वो कम हो जाता है, ठीक है, नॉर्मली बहुत ज्यादा कम हो जाता है। दिस कॉजेज द पर्सन टू हेयर अ शार्प लाउड साउंड विच इज नोन एज द सोनिक बूम। अब ये बहुत ज्यादा शार्प और लाउड साउंड होती है एंड इसी को ही हम सोनिक बूम कहते हैं। काफी ज्यादा खतरनाक होती है, क्यों? क्योंकि अचानक से काफी ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है और देन काफी ज्यादा अमाउंट में डिक्रीज भी हो जाता है, राइट। सो ये इंक्रीज डिक्रीज वुड बी द वेरी मच यू कैन से लाउड साउंड प्रोड्यूस करता है, ऑलराइट। अब देखते हैं आगे शॉक वेव। तो देखो, अ रीजन कंसिस्टिंग ऑफ अ वेरी हाई प्रेशर लेयर followed by a lower pressure layer travels through the space together with the cone, this is a shock wave। ऐसा सरफेस, ऐसा लेयर जहाँ पे हाई प्रेशर लेयर है एंड देन कम्स द लोअर प्रेशर लेयर, तो ये वाला जो रीजन होगा जहाँ पर ये लेयर्स वहाँ पर एग्जिस्ट करेंगी, वो जो लेयर होगा दैट वुड बी द शॉक वेव, बिकॉज द वेव्स आर गोइंग बैक, ठीक है, पीछे की तरफ जा रही है एंड द ऑब्जेक्ट इज कमिंग फॉरवर्ड। तो जो साउंड वेव है वो क्या करेगी, बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर वेव्स, वो क्या करेगी, शॉक वेव जनरेट करेगी, ठीक है। एंड वो कैसे होंगे, जब कभी भी प्रेशर डिफरेंस चेंज हो जाएगा, प्रेशर बहुत ज्यादा बदल जाएगा या तो बढ़ जाएगा एंड कम हो जाएगा, राइट। दिस शॉक वेव गिव्स राइज टू द सोनिक बूम व्हेन इट रीचेस अ पर्सन। ये शॉक वेव यानी कि ये जो सरफेस जिसकी बात हम कर रहे थे, ये शॉक वेव जब कभी भी किसी भी पर्सन के कानों तक पहुंचती हैं तो ये बहुत ही ज्यादा यू कैन से सोनिक बूम क्रिएट करती हैं, दैट इज द हाई डिक्रीज इन प्रेशर एंड द इंक्रीज इन प्रेशर, राइट। द शॉक वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट हैव इनफ एनर्जी टू शैटर ग्लास एंड इवन डैमेज वीक बिल्डिंग्स। इतनी ज्यादा एनर्जी होती है इन सोनिक यू कैन से शॉक वेव्स या फिर सोनिक बूम में कि वो किसी भी बिल्डिंग के कांच को शैटर कर सकती हैं और वो किसी भी वीक बिल्डिंग को गिरा सकती हैं, राइट। तो आप सोचिए कि ये किसी ऐसे सामानों का इतना बड़ा नुकसान कर सकती है, तो हमारे कान के पर्दों का तो बिल्कुल कर सकती है। सो वी नीड टू बी सेफ फ्रॉम दी शॉक वेव्स, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं सोनिक बूम की कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर है हमारा एयरक्राफ्ट, दैट मीन्स वो जो कि सुपरसोनिक स्पीड से मूव करेगा, अभी नहीं कर रहा है, ठीक है, अभी ये नॉर्मली है, ठीक है। अब जब ये नॉर्मली जाता है तो साउंड जो एमिट हो रही है वो कुछ इस तरीके से एमिट हो रही है, उसकी जो सर्कल्स में है वो एमिट हो रही है एंड इट इज स्लो, है ना, इससे स्लो है। एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो स्पीड है दैट इज स्लो, राइट, एंड यू आर गोइंग टू गेट दिस एयर फ्लो लाइक दिस। ये आगे आगे जाता जाएगा, साउंड वेव भी इसके साथ साथ आगे आगे जाएंगी ना, राइट, क्योंकि इसका स्पीड कम है, साउंड का स्पीड ज्यादा है, तो साउंड आगे जाएगी, राइट, एंड एयर में से वो ऐसे फ्लो कर रहा है। तो पहला केस जो हम देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि जब प्लेन की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ साउंड से कम है। At this time, the slow flying planes create air pressure disturbances that move at the speed of sound, traveling well in front of the plane. The airflow adjusts and disturbance disperse. ठीक है, तो यहाँ पे जब ये मूव करता है तो यहाँ पे ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, प्रेशर डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, क्योंकि इसका साउंड भी तो आ रहा है, राइट। एंड उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर जो एयर फ्लो हो रहा है उसको वो यहाँ पे क्या करता है, प्रेशर को डिस्पर्स कर देता है। तो यहाँ पे ये प्रेशर उतना एग्जिस्ट नहीं करेगा, प्रेशर इकट्ठा नहीं होगा, जितना भी प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो एयर के मूवमेंट की वजह से डिस्पर्स होते जा रहा है। तो प्रेशर वुड बी लाइक देयर वुड बी नो प्रेशर आफ्टर द डिस्पर्जन, डेफिनेटली, राइट। तो ये प्रेशर जो डिस्टर्ब हो रहा था वो इस एयर फ्लो से बैलेंस आउट हो रहा है, तो इतना कुछ हमें नुकसान नहीं होगा इस बात का, ठीक है। फिर आप सेकेंड केस देखिए। सेकेंड केस में आप देखिए जब क्या हो रहा है, प्लेन की स्पीड साउंड की स्पीड के बराबर हो गई, ठीक है। इन दैट केस आप देखेंगे सारे जो सर्कल्स थे ना, ये प्रेशर डिस्टर्बेंस थे ना, ये इस जगह पे सब कलेक्टेड हो गए और यहाँ से क्या होगा, शॉक वेव जनरेट होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एयर फ्लो है अब वो इसे बैरियर की तरह ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो जैसे जैसे साउंड वेव जैसे जैसे सोर्स आगे जा रहा है एज इक्वल द स्पीड ऑफ द साउंड, ठीक है, वैसे वैसे किस तरीके से जनरेट हो रही है, सारी की सारी साउंड वेव यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है, आगे उस पॉइंट पर इकट्ठी हो जाती है, राइट, एंड दे गेट कलेक्टेड ओवर देयर। अब क्योंकि प्रेशर डिफरेंसेस हैं, कलेक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब देयर वुड बी मोर प्रेशर, और अब
अब ये जो एयर है ये इस प्रेशर को डिस्पर्स नहीं कर पाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, अब जब नेक्स्ट में हम लोग करेंगे, पर देखिए द प्लेन्स फ्लाइंग एट द स्पीड ऑफ साउंड एक्सपीरियंस अ ड्रामेटिक इंक्रीज इन देयर ड्रैग बिकॉज डिस्टर्बेंसेस अक्यूमुलेट इंस्टीड ऑफ डिस्पर्स। जो डिस्टर्बेंसेस, प्रेशर डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो रहे थे वो डिस्पर्स होने की बजाय, यानी कि फैल जाने के या खत्म होने की बजाय वो अब कलेक्ट हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। आप देख पा रहे हैं सारे के सारे प्रेशर डिफरेंसेस यहाँ पर जो हैं इकट्ठे हो गए, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा और वो डिस्पर्स नहीं होगा, ठीक है। द एयरप्लेन हैज ऑलमोस्ट कॉट अप विद द प्रेशर वेव्स इट इज क्रिएटिंग विद इट्स फॉरवर्ड थ्रस्ट, राइट। वो टोटल अपने आगे जाने का जो फॉरवर्ड उसका थ्रस्ट है उसी के बिल्कुल मैचअप कर लेगा, किसके, जो वेव, जो प्रेशर डिफरेंस वहाँ पर क्रिएट हो रहा है, राइट। अब हम देखते हैं कि जब वो तेज़ी से जाएगा तो आप देखिए ऑब्जेक्ट अब आगे जा रहा है, पीछे पीछे साउंड वेव जा रहे हैं क्योंकि अब उसका स्पीड साउंड वेव की स्पीड से काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो देखो जब प्लेन का स्पीड साउंड की स्पीड से ज़्यादा हो जाए तो प्लेन जो है फ्लाइंग फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड कॉज पावरफुल शॉक वेव्स बिकॉज airflow has no time to adjust for them. The sonic boom is the sound associated with the shock wave. तो यहाँ पे एयर के पास एडजस्ट होने का टाइम ही नहीं मिलता, वो इतना तेजी से आगे जाता है एंड यू आर गोइंग टू गेट दिस मच ऑफ द डिफरेंस हेयर। यहाँ पे कोन क्रिएट हो जा रहा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कोन क्रिएट हो जा रहा है जिसके ऑपेक्स पे वो ऑब्जेक्ट है, वो रेड पॉइंट है ऑपेक्स पे, एंड यहाँ पर शॉक वेव जनरेट होंगी। यू आर गोइंग टू गेट दैट कोन एंड यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी मच हाई प्रेशर वेव्स नोन एज द शॉक वेव्स ओवर देयर एंड दैट विल कॉज द सोनिक बूम, ठीक है। सो इस तरीके से सोनिक बूम जो है प्रोड्यूस होता है और ये जो सोनिक बूम होता है वो काफ़ी ज़्यादा यू कैन से डिस्ट्रक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे ही चीज़ों को नुकसान पहुंचा सकता है बिकॉज ऑफ द एयर प्रेशर या फिर यू कैन से द साउंड प्रेशर। एयर तो वहाँ पे उसको कोप अप भी नहीं कर पाती, जो साउंड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेटेड हो जाता है एंड इट वुड बी वेरी मच हाई प्रेशर डिफरेंस ओवर देयर, ठीक है। ऑलराइट, तो आप इन्हें फटाफट से नोट कर लीजिए, फटाफट से लिख लीजिए, तीनों केसेस को लिख लीजिए। ऑलराइट, सो बेसिकली हम लोगों ने जो अभी तक सारी चीज़ें पढ़ी यानी कि द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल, alright, we are going to study that and in the next lecture we are going to study more and the reflections also। आज की क्लास में तो रिफ्लेक्शन नहीं हो पाया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिफ्लेक्शन करने की कोशिश करेंगे, ऑलराइट। एंड थोड़ा बहुत पार्ट और बाकी है, पहले हम उनको भी करेंगे, ठीक है, एंड वील बी लुकम टू दैट, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। So I'm going to end this lecture here. Thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming video. Thank you so much.